Good morning, students. Welcome to the history class. Continuing the chapter Changing Cultural Traditions. Today we will discuss about aspirations of women and debates within Christianity. The new ideal of individuality and citizenship excluded women. Men from aristocratic families dominated public life and were the decision makers in their families. They educated their sons to take their place in family business or in public life, at times sending their younger sons to join the church. Although their dowries were invested in the family business, women generally had no say in how their husbands should run their business. Often, marriages were intended to strengthen business alliance. If an adequate dowry could not be arranged, daughters were sent to convents to live the life of a nun. Obviously, the public role of women was limited and they were looked upon as keepers of the household. इंडिविजुअलिटी और सिटीजनशिप के नए विचारों से महिलाओं को दूर रखा गया। पब्लिक लाइफ में अरिस्टोक्रेट फैमिलीज और वेल टू डू फैमिलीज में पुरुषों का डोमिनेंस थी और घर परिवार के मामले में भी वही डिसीजंस लेते थे। उस समय लोग अपने लड़कों को ही शिक्षा देते थे जिससे उनके बाद वे उनके फैमिली बिजनेस या पब्लिक लाइफ की आम जिम्मेदारियों को उठा सके। कभी कभी वे अपने छोटे लड़कों को धार्मिक कार्य के लिए चर्च को सौंप देते थे। चाहे विवाह में मिली हुई डॉरी को वे अपने फैमिली बिजनेस में लगाते थे, फिर भी महिलाओं को ये अधिकार नहीं था कि वे अपने पति को बिजनेस चलाने के बारे में कोई राय दें। अक्सर कारोबारी दोस्ती को मजबूत करने के लिए दो परिवारों में आपस में विवाह संबंध होते थे। अगर पर्याप्त दहेज का प्रबंध नहीं हो पाता था तो लड़कियों को ईसाई मठों में नन्स का जीवन बिताने के लिए भेज दिया जाता था। आमतौर पर पब्लिक लाइफ में महिलाओं की भागीदारी बहुत सीमित थी और उन्हें घर परिवार को चलाने के रूप में देखा जाता था। The position of women in the families of merchants, however, was somewhat different. Shopkeepers were very often assisted by their wives in running the shop. In families of merchants and bankers, wives looked after the business when the male members were away on work. The early death of a merchant compelled his widow to perform a larger public role than was the case of aristocratic families. मर्चेंट फैमिलीज में औरतों की स्थिति कुछ अलग थी। दुकानदारों की स्त्रियां दुकानों को चलाने में अक्सर उनकी सहायता करती थी। मर्चेंट्स और बैंकर्स परिवारों की पत्नियां परिवार के कारोबार को उस स्थिति में ही संभालती थी जब उनके पति लंबे समय के लिए दूर दराज स्थानों को व्यापार के लिए जाते थे। अरिस्टोक्रेट फैमिलीज के बिल्कुल उलट व्यापारी परिवारों में यदि व्यापारी की कम आयु में मौत हो जाती थी तो उसकी पत्नी पब्लिक लाइफ में अपनी भूमिका निभाने के लिए कंपेल्ड होती थी। A few women were intellectually very creative and sensitive about the importance of a humanist education. Even though the study of letters promises and offers no reward for women and no dignity, wrote Venetian Cassandra Fedele, every woman ought to seek and embrace these studies. She was one of the handful of women who cautioned the idea that women were incapable of achieving the qualities of a humanist scholar. Fedele was known for her proficiency in Greek and Latin and was invited to give orientations at University of Padua. उस
काल की कुछ महिलाएं इंटेलेक्चुअली वेरी क्रिएटिव थी और ह्यूमनिस्ट एजुकेशन की भूमिका के बारे में काफ़ी सेंसिटिव भी थी। वेनिस निवासी कसांद्रा फेदेले ने लिखा, चाहे औरतों को शिक्षा ना तो पुरस्कार देती है और ना किसी सम्मान का आश्वासन, फिर भी हर एक औरत को सभी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा रखनी चाहिए और उसे ग्रहण करना चाहिए। वे उस समय की उन थोड़ी सी महिलाओं में से एक ऐसी महिला थी जिन्होंने उस समय इस विचारधारा को चुनौती दी कि एक ह्यूमनिस्ट स्कॉलर के गुण एक महिला के पास नहीं हो सकते। फेदेले का नाम ग्रीक और लैटिन भाषा के स्कॉलर्स के रूप में पॉपुलर था। उन्हें पादुआ विश्वविद्यालय में भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया था। Fedele's writings bring into focus the general regard for education in that age. She was one of many Venetian women writers who criticized the Republic for creating a highly limited definition of freedom that favored the desires of men over those of women. Another remarkable woman was the Marchioness of Mantua, Isabella di Este. She ruled the state while her husband was absent, and the court of Mantua, a small state, was famed for its intellectual brilliance. Women's writings revealed their conviction that they should have economic power, property, and education to achieve an identity in a world dominated by men. फेदेले की रचनाओं से ये बात सामने आती है कि उस काल में सब लोग शिक्षा को बहुत ही महत्व देते थे। वे वेनिस की उन अनेक राइटर्स में से एक थी जिन्होंने रिपब्लिक की आलोचना स्वतंत्रता की एक बहुत ही सीमित डेफिनेशन निर्धारित करने के लिए की, जो महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों की इच्छा को ज़्यादा अहमियत देती थी। इस काल की एक और प्रतिभाशाली महिला मंटुआ की मार्चेसा इसाबेला दी एस्ते थी। उन्होंने अपने पति की एब्सेंस में अपने राज्य पर शासन किया। चाहे मंटुआ एक छोटा राज्य था, फिर भी उसका राज दरबार अपनी इंटेलेक्चुअल ब्रिलियंस के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था। महिलाओं की रचनाओं से उनके इस दृढ़ विश्वास का पता चलता है कि उन्हें पुरुष प्रधान समाज में अपनी पहचान बनाने के लिए अधिक इकोनॉमिक पावर, प्रॉपर्टी और एजुकेशन मिलनी चाहिए। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डिबेट्स विद इन क्रिश्चियनिटी। ट्रेड एंड ट्रेवल, military conquest and diplomatic contacts linked Italian towns and courts with the world beyond. The new culture was admired and limited by the educated and wealthy. Very few of the new ideas filtered down to ordinary men who, after all, could not read or write. व्यापार और ट्रैवल, मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट यानी सैनिक विजय और डिप्लोमेटिक कॉन्टैक्ट्स यानी कूटनीतिक संपर्कों के कारण इटली के नगरों और राज दरबारों के दूर दूर के देशों से संपर्क एस्टैब्लिश हुए। नई संस्कृति की एजुकेटेड और वेल्दी लोगों द्वारा प्रशंसा ही नहीं की गई, बल्कि उसको अपनाया भी गया उनके द्वारा। परंतु इन नए विचारों में कुछ ही आम आदमी तक पहुंच सके, क्योंकि वे पढ़े लिखे नहीं थे। In the 15th and early 16th century, many scholars in universities in North Europe were attracted to humanist ideas. Like their Italian colleagues, they too focused on classical Greek and Roman texts along with the holy books of Christians. But unlike Italy, where professional scholars dominated the
Humanist movement. In North Europe, humanism attracted many members of the church. They called on Christians to practice religion in the way laid down in the ancient text of their religion, discarding unnecessary rituals which they condemned as later addition to a simple religion. Theirs was a radically new view of human beings as free and rational agents. Later philosophers were to return to this over and over again, inspired by the belief in a distant God who created man but allowed him complete freedom to live his life freely in pursuit of happiness here and now. 15th और अर्ली 16th सेंचुरी में नॉर्दर्न यूरोप की यूनिवर्सिटी के अनेक स्कॉलर्स ह्यूमनिस्ट विचारों की ओर अट्रैक्ट हुए। अपने इटालियन कलीग्स की तरह उन्होंने भी ग्रीक और रोम के क्लासिक टेक्स्ट और क्रिश्चियंस के होली बुक्स के अध्ययन पर अधिक ध्यान दिया। पर इटली के विपरीत, जहां प्रोफेशनल स्कॉलर्स ह्यूमनिस्ट मूवमेंट पर हावी रहे, नॉर्दर्न यूरोप में ह्यूमनिस्ट ने क्रिश्चियन चर्च के अनेक सदस्यों को अट्रैक्ट किया। उन्होंने क्रिश्चियंस को अपने पुराने होली बुक्स में बताए गए तरीके से धर्म का पालन करने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने अनावश्यक कर्म कांडों यानी रिचुअल्स को त्यागने की बात की और उनकी ये कहकर निंदा की कि उन्हें एक सिंपल रिलीजन में बाद में जोड़ा गया है। मानव के बारे में उनका व्यू बिल्कुल नया था, क्योंकि वे उसे एक फ्री और रैशनल एजेंट समझते थे। बाद के फिलोसफर्स बार बार इसी बात को दोहराते रहे। वे एक डिस्टेंट गॉड में विश्वास रखते थे और मानते थे कि उसने मनुष्य बनाया है, लेकिन उसे अपना जीवन मुक्त रूप से चलाने की पूरी आज़ादी भी दी है। वे ये भी मानते थे कि मनुष्य को अपनी खुशी इस विश्व में प्रेजेंट में ही ढूंढनी चाहिए। Christian humanists like Thomas More in England and Erasmus in Holland felt that the church had become an institution marked by greed, extorting money at will from ordinary people. One of the favorite methods of the clergy was to sell indulgences document, which apparently freed the buyer from the burden of the sins he had committed. Christians came to realize from printed translations of the Bible in local languages that their religion did not permit such practices. क्रिश्चियन ह्यूमनिस्ट जैसे कि इंग्लैंड के थॉमस मोर और हॉलैंड के रस्मस का ये मानना था कि चर्च एक लालची और साधारण लोगों से बात बात पर लूट खसोट करने वाली संस्था बन गई है। पादरियों का लोगों से धन ठगने का सबसे आसान तरीका इंडल्जेंस नामक डॉक्यूमेंट था, जो व्यक्ति को उसके सारे किए गए पापों से छुटकारा दिलाने का आश्वासन देता था। क्रिश्चियंस को बाइबल के लोकल लैंग्वेजेस में छपे ट्रांसलेशन से ये पता चल गया कि उनका धर्म इस प्रकार की प्रथाओं के प्रचलन की आज्ञा नहीं देता है। In almost every part of Europe, peasants began to rebel against the taxes imposed by the church, while the common folk resented the extortions of churchmen. Princes found their interference in the work of the state irritating. They were pleased when the humanists pointed out that the clergy's claim to judicial and fiscal powers originated from a document called the Donation of the Contestine, supposed to have been issued by Constantine, the first Christian Roman emperor. Humanist scholars were able to point out that this was not genuine and had been forged later. यूरोप के लगभग प्रत्येक भाग में किसानों ने चर्च द्वारा लगाए गए इस प्रकार के अनेक टैक्सेस का विरोध किया। इसके साथ साथ
राजा भी राजकाज में चर्च की दखलंदाजी से चिढ़ते थे। जब ह्यूमनिस्ट ने उन्हें ये सूचित किया कि जुडिशियल और फिस्कल पावर्स पर पादरियों का दावा डोनेशन ऑफ कॉन्टेस्टाइन नाम के एक डॉक्यूमेंट से उत्पन्न होता है, जो कि प्रथम ईसाई रोमन सम्राट कॉन्टेस्टाइन द्वारा शायद जारी किया गया था, जो उन राजाओं को खुशी हुई क्योंकि ह्यूमनिस्ट विद्वान ये दर्शाने में सफल रहे कि कॉन्टेस्टाइन का ये डॉक्यूमेंट असली नहीं बल्कि जालसाजी से तैयार किया गया था। In 1517, a young German monk called Martin Luther launched a campaign against the Catholic Church and argued that a person did not need priests to establish contact with God. He asked his followers to have complete faith in God, for faith alone could guide them to the right life and entry into heaven. This movement, called Protestant Reformation, led to the churches in Germany and Switzerland breaking their connections with the Pope and the Catholic Church. In Switzerland, Luther's ideas were popularized by Ulrich Zwingli and later by Jean Calvin. Backed by merchants, the reformers had greater popular appeal in towns, while in rural areas the Catholic Church managed to retain its influence. Other German reformers like Anabaptists were even more radical. They blended the idea of salvation with the end of all forms of social oppression. They said that since God had created all people as equal, they were not expected to pay taxes and had the right to choose their priest. This appealed to peasants oppressed by feudalism. 1517 में एक जर्मन युवा भिक्षु मार्टिन लूथर ने कैथोलिक चर्च के विरुद्ध अभियान छेड़ा और इसके लिए उसने दलील पेश की कि मनुष्य को ईश्वर के से संपर्क साधने के लिए पादरी की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने अपने फॉलोअर्स को आदेश दिया कि वे ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखें, क्योंकि केवल उनका विश्वास ही उन्हें सही जीवन की ओर ले जा सकता है और उन्हें स्वर्ग में प्रवेश दिला सकता है। इस आंदोलन को प्रोटेस्टेंट सुधारवाद नाम दिया गया, जिसके कारण जर्मनी और स्विट्जरलैंड के चर्च ने पोप तथा कैथोलिक चर्च से अपने संबंध समाप्त कर लिए। स्विट्जरलैंड में लूथर के विचारों को उल्रिक जिंगली और उसके बाद जीन कैल्विन ने काफ़ी पॉपुलर बनाया। व्यापारियों से समर्थन मिलने के कारण सुधारकों की लोकप्रियता शहरों में अधिक थी, जबकि गांव में कैथोलिक चर्च का प्रभाव जारी रहा। अन्य जर्मन सुधारक जैसे एनाबेपिस्ट संप्रदाय के नेता इनसे कहीं अधिक रेडिकल थे। उन्होंने मोक्ष यानी साल्वेशन के विचार को हर तरह के सामाजिक ऑपरेशन के अंत के साथ जोड़ दिया। उनका कहना था क्योंकि ईश्वर ने सभी इंसानों को एक जैसा बनाया है, इसलिए उनसे कर देने की अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए और उन्हें अपना पादरी चुनने का अधिकार होना चाहिए। इसने फ्यूडलिज्म द्वारा ऑप्रेस्ड किसानों को आकर्षित किया। Luther did not support radicalism. He called upon German rulers to suppress the peasants' rebellion, which they did in 1525. But radicalism survived and merged with the resistance of Protestants in France, who, persecuted by the Catholic rulers, started claiming the right of a people to remove an oppressive ruler and to choose someone of their own liking. Eventually, in France, as in many other
parts of Europe, the Catholic Church allowed Protestants to worship as they choose. In England, the rulers ended the connection with the Pope. The king or the queen was from then onwards the head of church. लूथर ने रेडिकलिज्म का समर्थन नहीं किया। उन्होंने आह्वान किया कि जर्मन शासक कंटेम्प्रेरी पीजेंट्स रिबेलियन का दमन करे। ऐसा इन शासकों ने 1525 में किया, पर इसके बावजूद रेडिकलिज्म बना रहा। रेडिकलिज्म फ्रांस के प्रोटेस्टेंटों के विरोध से मिल गए, जिन्होंने कैथोलिक शासकों के अत्याचार के कारण ये दावा करना शुरू कर दिया था कि जनता को अत्याचारी शासक को हटाने का अधिकार है और वे उसके स्थान पर अपने पसंद के व्यक्ति को शासक बना सकते हैं। अतः यूरोप के अनेक क्षेत्रों की तरह फ्रांस में भी कैथोलिक चर्च ने प्रोटेस्टेंट लोगों को अपनी पसंद के अनुसार उपासना करने की छूट दी। इंग्लैंड के शासकों ने पोप से अपने संबंध तोड़ लिए। इसके बाद राजा या रानी इंग्लैंड के चर्च के प्रमुख बन गए। नाउ वी कम टू लास्ट part of this lecture. The Catholic Church itself did not escape the impact of these ideas and began to reform itself from within. In Spain and in Italy, churchmen emphasized the need for a simple life and service to the poorer. In Spain, Ignatius Loyola, in an attempt to combat Protestantism, set up the Society of Jesus in 1540. His followers set up the Society of Jesus in 1540. His followers were called Jesuits, whose mission was to serve the poor and to widen their knowledge of other cultures. कैथोलिक चर्च स्वयं भी इन विचारधाराओं के प्रभाव से अछूता नहीं रह सका और उसने अनेक इंटरनल रिफॉर्म्स करने का प्रबंध किया। स्पेन और इटली के पादरियों ने सादा जीवन और गरीब लोगों की सेवा पर जोर दिया। स्पेन में प्रोटेस्टेंट लोगों से संघर्ष करने के लिए इग्नेशियस लोयोला ने 1540 में सोसाइटी ऑफ जीसस नाम संस्था बनाई। उनके फॉलोअर्स जेसुइस्ट कहलाते थे और उनका मकसद निर्धनों की सेवा करना और दूसरे कल्चर्स के बारे में अपने ज्ञान को और ज़्यादा व्यापक बनाना था। आज के लिए इतना ही। शेष अगले लेक्चर में कंटिन्यू रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।